Abhishek, a very dynamic facilitator and a very dynamic, rather, I would say, a trainer who facilitates and trains the students, having a very good track record of his academics. He has completed his engineering from University of Pune. Currently, he is pursuing his masters in political science from international relations from MIT. As far as his work experience is concerned, he has worked with a very reputed NGO called Greenpeace India. Then next company is UNICEF. Then also he has worked with the JPG Strategies, a perception team research under the able leadership of MLA Rohit Pawar. He has completed 3 years integrated batch of UPSC from Unique Academy. As far as his teaching profession is concerned, he teaches social science subjects, aptitude, and soft skills. The topic what selected today is a very boiling topic today. It's impact hiring in different sectors, career opportunities, and of course a very important aspect in your career, that is aptitude and soft skills. Because many a times what happens, we don't take it seriously when we are pursuing our engineering. Rather, we don't understand what is going around, and we take everything so granted. We feel that market is sitting there to welcome us as far as the jobs are concerned. But guys, this scenario is quite different. Market expects a talent which has a problem solving and of course a critical thinking attitude, and definitely the market is going to be quite tough, and we need to be prepared as far as the market scenario is concerned. Today I have been observing many students, they are getting everything online in a free of cost, and that is the reason we people don't realize, rather we don't understand the importance of it. But remember guys, yesterday we had a very wonderful session of respected Abhijit Pawar, who is the MD of Sakhar, and he has told the Indian youths has got a very famous terminology with them, that is the laziness. We have got a habit of working 5 days in a week, which should not be there. We have got a habit of working 8 hours or maybe 6 hours in a day, but that should not be there. He suggests that if at all you want to become a successful personality in your life, I don't say you should become a successful engineer. You are going to become an engineer, no doubt about it. But to become a successful engineer or not, before that you need to become a successful human being first. Then and then it is possible to achieve whatever the desired goals you have in your life. So remember, you have to work day by making days and nights together. You have to take a lot of efforts before you enter into career, and unless you get a right kickstart in terms of your career, you will not be in position to land yourself very positively. So with this, we have Abhishek sir. Abhishek sir will be recording this session live, and then maybe after your session we can have a question answer session as well, which I will moderate it. And definitely my students are going to get a lot of benefit out of your session, and the topic is really boiling. I'm very confident this will help students a lot. Whosoever had joined today would be fortunate enough, I will say. So Abhishek sir, I welcome you on behalf of SVPM's College of Engineering, Malegaon, Baramati. Students are very Yes, lucky that they have you as a resource person on this platform. So I request you to please take a thanks. charge and guide the students further. Over to you, Abhishek. Yes, thank you, sir. Thanks for like your appreciation. So like before starting the session, like am I audible? सबको आवाज आ रही है, sir? Like Yes, no problem. yes. Acha, fine. So before starting the session, like I would like to thanks upon Dr. S.M. Mukane, principal of SVPM College. Apart from this, like Dr. Madhur also, the head of training and placement officers, all teaching and non-teaching staff. इसके अलावा all the students who I consider as a youth, the voice as well as the growth and development of the country. So I would really like to thanks upon all the students for joining. Yeah.
So before without wasting the time, we'll directly jump onto our topic, because like there are several parameters जिसमें like हमें cover करना है. So in that, what we are going to see in today's session is initially we will see the importance of aptitude. Then like we will jump on to soft skills, why there is important, and rather than definitions, like we will take several real time examples कि जो आपको like concept समझने में, like what is real importance, like rather than saying what is definition, or rather than like what I'm trying to say, वो आपको समझने के लिए I will definitely cover different real time examples. Fine. Yeah. इसके बाद like what we will see, like the different impacts, what will be the hiring process, what will be the market scenarios, and definitely what is impact. अभी like I had heard, like मैंने देखा भी एक like near about more than 150 or 250 something आपके कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई. So for that I really congratulations, I congrats Raul sir, and definitely I will try to cover each and every aspect of the webinar. And like what we are going to see is like, there are, I had sorted out near about 10 to 15 parameters, like what will be the career opportunities after engineering, after MBA, apart from this, after like you can consider BCA, all streams. Okay, fine. So we'll start with importance of aptitude, right? And of course, like सबसे पहले इसमें मुझे बोलना है कि why aptitude is important. There are ऐसे कोई नहीं, like there is not a single exam जिसमें aptitude cover नहीं किया है. You can take UPSC, you can take IGNOU exams, banking exams, job या फिर company interviews. हर चीज में like aptitude is implemented, or one or the other way it can be utilized. ठीक है. So first of all, what point I want to tell you that like what aptitude means, like in short हम बोल सकते हैं कि like problem solving skills, decision making skills, analytical as well as applicational ability of an individual, या फिर prediction and observation of power, prediction as well as observation of power. Apart from this, इसके अलावा aptitude like क्या हो सकता है, मतलब अगर आप aptitude करते हो कौन सी ऐसी चीजें रहेगी कि जिस पे impact होगा. तो जैसे memory हो गया, like concentration, calculation. ठीक है. So we'll take one of the real time examples, like प्रॉब्लम सॉल्विंग. जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती है, एनालिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशनल एबिलिटी अपार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ पावर. ठीक है. सो या एंड लास्ट पॉइंट व्हिच आई हैड टोल्ड, दैट इज मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेशंस. ठीक है. नाउ विल टेक रियल टाइम एंड एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल. Like it is one of the example I had covered in your college, but I will repeat that again क्योंकि वो बहुत important concept है. See, now if you like यहाँ पे जो भी students है, these are from technical background. So keeping in mind, क्या होता है, company have different domains like which they are working on. For example, aviation, banking, finance, service and insurance, BFSI domain, या फिर रिटेल डोमेन. ठीक है. सो लाइक अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लाइक हाउ मेनी देयर आर स्ट्रीट लाइट्स ऑन इन द पुणे, या फिर कोई भी सिटी हो, मालेगांव में कितने स्ट्रीट लाइट्स है, तो इन दैट केस लाइक व्हाट एक्चुअली कंपनी नीड्स. अभी ये जो रियल टाइम एग्जांपल है, व्हाट कंपनी नीड्स, क्या चाहिए कंपनी को इसमें से. डू यू थिंक दैट लाइक उनको करेक्ट आंसर चाहिए कि लाइक या इतने हैं उतने हैं? नो. व्हाट दे नीड इज लाइक हाउ यू टैकल दैट प्रॉब्लम, how you face that situation. That's what company needed from your side. उनको जरूरी नहीं कि like आपको exact number पता होना चाहिए कि इतने street lights मेरे city में है. No. But how you face it, what is your facial expression, like how you tackle that situation, that's what is needed to the company. ठीक है. ये हो गया aptitude का. Apart from this, like जैसे मैंने बोला, the BFSI domain. So Infosys is such a company कि जो BFSI डोमेन पे काम करती है, मतलब all the applications related to banking, finance, service, insurance, पूरे वर्ल्ड वाइड में Infosys को डिमांड है. So in that case, like जब Infosys for example आपके कैंपस में आती है, so some companies और Infosys give you desired syllabus कि aptitude में आपको ये सब करना है. These are the only topics which you have to study thoroughly.
So in that case, why they are giving you desired or that much syllabus? The reason behind it is कि for example percentage है, तो वो टॉपिक उन्होंने बोला है कि आपको अच्छी तरह से करना है. तो in that case by default वो ऐसे सोच रहे हैं या फिर they are expecting from you कि आपको ऐसा at least that knowledge you should be aware so that you can apply that same knowledge in the company. That's what is the motto of the company. ठीक है. Apart from this, इसके अलावा like I will tell you one of the concept. There is one testing that is ad hoc testing, ठीक है, या फिर random testing वगैरह होती है. तो in that case क्या होता है, like for example गेमिंग कंपनी आप पकड़ लो, तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा पजल्स पूछेंगे. लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था इन योर कॉलेज एज वेल 3D PLM का. सो हर बार वो कंपनी में इंटरव्यू इट्स लाइक ऑनगोइंग. हर बार आप कभी भी जाओ देयर आर इंटरव्यूज and definitely near about 60 to 70% they are going to ask you or they will ask you puzzles. So in that case what that company, what 3D PLM needs from you कि आपका वैसा अप्रोच है कि like are you thinking in that way or not. अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आती है तो कैन यू टैकल दैट सिचुएशन. दैट इज व्हाट इज needed in aptitude. And for that purpose like companies different exams या फिर competitive exams जिसमें like it acts as a entry criteria to the company. So aptitude is a must and in any condition you have to work on it. ठीक है. Fine. Now apart from this like क्या हो सकता है like when you work in the company there are several complex situations. So वो complex situation can you handle it or not. कुछ critical projects होते हैं. See like when you get into company या फिर आप कंपनी में जाने से पहले आपको क्या टेस्ट क्या करते हैं like what they need from your side. तो the thing is कि for example you're working and on a project या फिर you are a coder. आप डेवलपमेंट प्रोसेस में आपको उन्होंने हायर किया है. तो when you get inside the company तो they don't expect कि like you should know the 25,000 lines code. ये उनको रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. what they want is the solution या फिर they don't want कि पूरा कोड आपको आना ही चाहिए but at least you should know the basics कि this is the syntax, this is that ये ऐसे work होता है and if I do like that then it will work. और कंपाइलेशन प्रोसेस कैसी होती है, कोडिंग थोड़ी थोड़ी करके हम कैसे सीख सकते हैं. दैट इज व्हाट इज अप्रोच व्हिच दे टेस्ट फ्रॉम योर एप्टीट्यूड्स. फाइन. या so complex situations we had seen many problems like problem solving skills. डिसीजन आप कैसे लेते हो. ठीक है. कंपनी में like when you are in like they will expect कि आप एक you are a good decision maker. like आप एक immediate decision ले सकते हो. they test that ability. ठीक है. analytical as well as application ability. what is analytical मतलब ये जो डिसीजन आप ले रहे हो you have that confidence to take that decision. या फिर अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, हाउ यू फेस टू दैट. ये जो एनालिटिकल एबिलिटी है, एप्लीकेशनल एबिलिटी है, दैट्स व्हाट दे नीड फ्रॉम योर साइड. ठीक है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड and real time example you can relate these things to the aptitude, how they are going to affect your career or how they will help to grow in your career. ठीक है. इसके अलावा we had seen complex situations. इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटी, एप्लीकेशन बेस्ड एबिलिटी, प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन पावर. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक योर मेमोरी, योर कंसंट्रेशन एज वेल एज योर कैलकुलेशंस. इसमें भी आप लाइक डू यू हैव द पोटेंशियल टू वर्क ऑन इट और नॉट. ये सब चीजें एप्टीट्यूड में चेक की जाती है एंड दैट्स व्हाट वी हैड सीन इन द रियल टाइम एग्जांपल्स जो मैंने आपको बोला. राइट. नाउ वी विल कम टू द सेकंड पॉइंट दैट इज सॉफ्ट स्किल्स. ठीक है. So like I had seen like many like I will give you one example before starting the topic soft skills. So when I was in last year like हमारे यहाँ पे Zensar का ड्राइव हुआ था. तो in that case there are several students involved जिसमें like मेरा भी एक नाम था. I was a person apart from this ओंकार कलगुड़े करके was a student. Those students were quite very weak in coding process. बट जैसे आपने क्या लाइक व्हेन यू टॉक आप कैसे बात करते हो तो दैट कम्युनिकेशन स्किल हो या आपके पास जो सॉफ्ट स्किल्स है सो वो सॉफ्ट स्किल्स अगर आप अप्लाई करते हो
So in that case, like you may get a chance to get inside the company. And aptitude, it's like an oxygen, आप बोल सकते हो, ठीक है? It's a paramount of getting promotions, getting to the highest position, getting to the highest ladder of the corporate. So you can call it as paramount, या फिर one of the best way to reach the highest ladder of the corporate, कि जो आपको mandatory है, आपको, if you are weak, if you are not strong on your soft skills, you have to work on it in any situation or in any condition, ठीक है? इसके पहले like tell you one of examples, या फिर I will guide you in that case कि आपको वो करना ही है, ठीक है? अभी like we are going to see 5 to 7 parameters कि जिस पे आपको काम करना है, but before that I will suggest you कि soft skills develop करने के लिए be in touch with your teachers, especially mother also, and be genuine with your placements. So like आपने लास्ट अभी ये टाइम आपने देखा होगा कि आपकी प्लेसमेंट्स कितनी होती है, तो बी इन टच विद दैम. उससे क्या होता है ना, लाइक योर कॉन्फिडेंस ग्रोज. एंड ऑफ कोर्स और एक दो बात मुझे सजेस्ट करनी है, दैट इज लाइक एटलीस्ट 2 times इन अ वीक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है सर. सेकंड और एक बात, एंड एटलीस्ट इन 15 days यू हैव टू मीट विद, मतलब बात करने एटलीस्ट जाके, ठीक है? डजंट मैटर कि वो कुछ कंसर्न हो, कुछ इश्यू हो, नो, बट टॉक विद हिम, बी इन टच विद योर टीचर्स. उससे क्या होता है ना, लाइक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. यू गेट विजुअल टू द पीपल हु वर्क विद इंडस्ट्री लेवल्स, या फिर आपके पेरेंट्स लोग हैं. बी इन टच, लाइक टच नहीं, बट लाइक कैसे होता है, लाइक इन रूरल बैकग्राउंड या फिर इन मेनी रियल टाइम एग्जांपल्स वी सी कि क्या होता है, लाइक जब हमारे पेरेंट्स लोग बैठते हैं मीटिंग में या फिर कुछ बात करते हैं, वी डोंट गो देयर. सो इट शोज दैट यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. बात आप बैठ तो सकते हो ना, लाइक यू अंडरस्टैंड कि लाइक व्हाट दे टॉक, लाइक ऑन व्हाट बेसिस दे टॉक, ठीक है? सो ये जो थोड़े से 3-4 पॉइंट्स मैंने बोला, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन. ना, बी इन टच विद योर टीचर्स, टॉक विद देम, विश देम, लाइक स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, ऑल दोस थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक फॉलो योर आइडियल्स, या फिर कुछ ऐसे स्पीचेस सुनो कि जिससे तो आप लाइक यू विल गेट मोटिवेटेड, ठीक है? एंड आपको पता नहीं चलता कि कब मेरे में इतने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो गए हैं. So these are just like random examples. We will go by like 5 to 7 parameters. ठीक है? Yeah. So जैसे मैंने बोला, like soft skills, why it is important. जैसे and I had taken 1 or 2 examples, real time examples, कि जो बहुत matter करते हैं, and you will understand the importance. Like अभी आपको immediate पता नहीं चलेगा. And soft skills is not a process, or it's not a thing which can be calculated from your books, या फिर एक दिन में मेरा आपने वेबिनार सुन लिया एंड लाइक यू विल बी मास्टर्स इन सॉफ्ट स्किल्स. नो, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस. इट्स लाइक एन अपडेट. हर जो नई चीज आती है, लाइक यू आर अपडेटिंग योरसेल्फ. दैट्स व्हाट लाइक यू आर लर्निंग, ठीक है? फाइन. या उसके बाद लाइक विल नाउ टू डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, ठीक है? Abhi, what is these parameters? Like, what are the point like which we are going to cover in that? Like, first thing is that is communication. अभी ये जो भी 5 से 7 parameters which I am going to cover, उसमें याद रखना है कि like for example, if I'm talking about first point which I'm going to talk, that is communication. So ask to yourself why I need communication. Second thing, why company needs communication, and how I will gain it. ठीक है? Why I need it, why company needs it, and what or how I'm going to achieve it, how I'm going to gain it. ठीक है? These are the 3 things which you have to focus. जो भी 7 पैरामीटर्स होंगे उस पे आपको ये 3 क्वेश्चन खुद को पूछना है, ठीक है? And one more, like I want to advise, be genuine with yourself. No need to be genuine with others कि like उसकी placement हो गई. No, you are not a social worker. In that case, like it's a approach what company needed, ठीक है? Like आपका टास्क हुआ कि नहीं कंप्लीट, you are thinking about others task, and what about your task? So it doesn't make any sense. So what I will suggest, be genuine with yourself कि आपको नहीं आता है, you have to work on it. And there are several students from your college as well कि जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जैसे like you, आपको पता होगा स्वप्निल भोसले करके, he is one of the student who is always in touch with me. Apart from this नीलेश माने करके सेकंड ईयर का लड़का, and one of the girl that is दर्शनी भोकारे करके एक लड़की है. So always like कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, they watch my several videos, और like मेरे जहाँ जहाँ पे वेबिनार हुए,
they are there, they were there for the webinars, and they are always in touch. Okay, so like first point will see that communication too चाहिए, इसका why company need. Now we will take one real time example. ठीक है, अभी क्या होता है when you get inside the company, like एक ऐसी after some years ऐसी situation आ सकती है कि like you are the person who is hired, who had given responsibility to talk with stakeholders, your client, या फिर your peer groups, या फिर company partners. So in that case communication matters a lot. अगर आपको बोलना नहीं आता है and you are the person, if you had made a single mistake while talking with your client or with your company partners, it may like company may get loss of crores, may get loss in crores. क्या होता है ना, when you talk with the client, like they should satisfy, like वो smile, the way you talk, the way you express, that's what is needed. Anyhow client satisfy होना चाहिए, that's what is needed. And अगर आप उसमें थोड़ी भी गलती करते हो तो in that case आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी सैलरी वक्त पे आएगी, नो डाउट, बट इसमें कंपनी का बहुत सारा लॉस है. ठीक है, is one of the most important thing which you need. That is the first parameter. That was the first thing in the 7 parameters. Okay. Now second thing is like verbal and written as well as non-verbal communications. ठीक है, अब ये non-verbal communication क्या होता है, तो it's a wordless, मतलब मैंने पहले भी मेंशन किया, आपका जो facial expression है, आपकी जो smile है, the way you dressed, ठीक है, the way you like क्या बोलते हैं उसको, like आप hair cut कैसे करते हो, ठीक है, all these things matters a lot. जब आप ड्रेस पहनते हो तो the dress should be decent. ठीक है, उससे क्या होता है ना, like आगे का person he is like impressed, like impress होने के लिए, like impress करने के लिए you have to do that. ठीक है, so that is why verbal, non-verbal, मतलब non-verbal communication जो parameter है इसमें ये सब चीजें आती है, your eye contact, the way you talk, your facial expression, your smile. ठीक है, non-verbal communication. verbal में the way you write, the way you mail, ठीक है, कैसे होता है, all those things comes under like verbal and written communication. ठीक है, now first we had seen communication, why it is needed. Second thing, that is verbal and non-verbal communication. Third thing what you need is a leadership quality. अब ये leadership क्या होता है, so leadership is not the thing कि जो आप किसी से करवा के लेते हो, that is not a leadership. ठीक है, leadership is such a concept कि जो आप like you keep motivating with your co-workers and you guide them in such a way that you should take a company, you will take the company to the highest position or to the long, like again to gain the visibility, long term vision. So in that case leadership is very very important. ठीक है, मतलब Hello, Abhishek. Hello. हॅलो, हा सर नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे त्यांचा. एक मिनिट. Hello, Abhishek. so like what we are seeing, आवाज आ रही है, am I audible sir? Now okay. Yeah, sure, fine. So I'm really sorry for that, like यहाँ पे थोड़ा सा network issue है. Yeah. No issue. So what we had seen, yeah, what we had seen, the leadership. So ये quality like you should have. ठीक है,
सो टू बिल्ड द कंपनीज लीगेसी, या फिर एक लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है एक लीडर का, दैट्स व्हाट कंपनी नीडेड, और कंपनी understands from you, and that's what, for that reason it's a quality which you should build in yourself. अभी आप कैसे build करोगे, तो एक parts in your curricular activities. For example, सर कुछ टास्क बोलते हैं, ऐसे इनिशिएटिव दिखाओ, सर लाइक आई एम इंटरेस्टेड टू डू दैट, ठीक है, ऐसे नहीं कि लाइक मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, दैट्स इट, नो, ट्राई टू बी पार्टिसिपेटिंग डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है. सो इन दैट केस उससे क्या होता है ना, आपका टीम मैनेजमेंट, आपका लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. वो आपको मैंने ये डिस्कस किया है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विच इज मोस्ट नीडेड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. ये आप कहाँ पे भी जाओ, इट इज ऑलवेज नीडेड, ठीक है. नेक्स्ट वर्क दैट इज टीम वर्क, ठीक है. सो व्हाई टीम वर्क इज नीडेड, अभी क्या होता है ना, लाइक वी विल सी दिस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है. व्हाई टीम वर्क इज नीडेड, अभी क्या होता है, आई विल गिव यू वन रियल टाइम एग्जांपल. इन द कंपनीज देयर आर सेवरल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस. अभी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस क्या कंसेप्ट है, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इज अ कंसेप्ट, इसमें क्या होता है ना, लाइक सबके ओपिनियन लिए जाते हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए. सो इन दैट केस लाइक यू बिल्ड अ रेपो, ठीक है. और ये जो टीम वर्क है, इससे क्या होता है ना, लाइक जो काम करने के लिए आपको 10 दिन लग रहे, इन दैट केस यू कैन वर्क आउट और यू विल cover that work in hardly 5 days. That's why teamwork is very important, ठीक है. अब ये brainstorming session में it is one of the examples of teamwork, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन हम बिल्ड कर रहे हैं, अभी क्या होता है, a person working with Zensar, a person working with Honeywell, a person working with Infosys. So ये लोगों ने they are working, for example, a person working since last 15 years. So he had a deep knowledge about application. For example, हम एक application लेते हैं, that is banking का application. For example, उसमें लेते हैं हम to send, for example, send option होता है कि या फिर transfer option होता है. तो वो मॉड्यूल बिल्ड करने के लिए he had worked or he's been working since last 10 to 15 years. So he knows each and every pitfalls, the solutions on that problem. So अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो इन दैट केस अगर ये टीम वर्क में अगर वो दूसरों को गाइड करता है, तो इट बिकम्स मोर प्रोडक्टिव, ठीक है. सो दैट्स व्हाई टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, या. सो नेक्स्ट पैरामीटर विच वी आर गोइंग टू सी, दैट इज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन. अभी इसको लाइक आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट इन अ लिटिल बिट फनी वे. अभी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो लाइक अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, एंड अ बॉस हैड गिवन यू द टास्क कि आपको ये मॉड्यूल कंप्लीट करना है टिल 5 o'clock, ठीक है. तो लाइक जब ये जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, अगर यू हैव दिस गट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन आप करते रहते हो, तो इन दैट केस लाइक बॉस कब स्माइली होता है, व्हाट आर द बॉस की हैबिट्स कौन सी, कि लाइक वो उस टाइम खुश रहेगा. तो जब आपका ये ऐसा ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो इन दैट केस अगर आपका टास्क कंप्लीट नहीं है, तो व्हाट यू कैन आस्क, फॉर एग्जांपल उसको कॉफी बहुत पसंद है, तो यू कैन आस्क हिम बिफोर 3 o'clock, सर लाइक कैन वी हैव अ कॉफी. सो उससे क्या होता है ना, सो इट हेल्प्स यू टू गेट रीड ऑफ दिस टेंशंस. लाइक आपको पता है कि 5 या 6 बजे वो तो आपको डांटने वाला है, एंड लाइक एनी हाउ आपका टास्क कंप्लीट नहीं होने वाला. तो इन दैट केस ये जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, इट हेल्प्स यू इन सच अ वे. एक्चुअली वो एक फनी वे था कि लाइक व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्रोच, गुस्सा कब आता है, लाइक अगर आप लेट हो रहे हो तो व्हाट आर द वर्ड्स दैट वी शुड टॉक, ठीक है, या फिर थोड़ा सा. सो फाइन, ठीक है. So that's why like critical observation is also one of the important parameters in the company, ठीक है. Now और उसके like one of the parameter क्या है, तो like better ideas. ये अगर आपके पास if you have this gut, if you have this potential of critical observation, तो it's like आपके mind में नए नए ideas आते हैं, like you talk about different innovations, and वही तो कंपनी को चाहिए ना. अगर आप जो भी चैलेंजेस कोविड-19 की वजह से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी,
Now in future, definitely after COVID-19, companies are going to look for technology based alternative technology या फिर digital, ठीक है. So in that case you should get updated. तो ऐसे situations में ये जो चीजें होती है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है. So critical observation और ये जो innovations है, ये जो ideas है, ये कब आएंगे? Like when you have the critical observation, ठीक है. Now last, that is conflict resolution, ठीक है. अब ये conflict resolution क्या है? तो it's like you act as a mediator, ठीक है. अभी for example 2 मॉड्यूल्स पे काम चल रहा है and like you are a developer, आपने एक build send किया and a second engineer had sent one build for the testing purpose. So कुछ conflict हो जाता है उसमें, तो you act as a mediator. अरे यार don't worry, like I will sort it out. So इससे क्या होता है ना, why conflict resolution this parameter is important for you to maintain the relations या फिर आपके जो भी peer groups है, in that case it helps you a lot, ठीक है. और इसके अलावा why company needed या फिर why company needed this conflict resolution ability. तो क्या होता है ना, like अगर आपका conflict resolution ये जो पैरामीटर, इफ यू आर स्ट्रांग ऑन दिस, लाइक कंपनी आपको बोल सकती है लाइक यू कैन सॉर्ट आउट दैट इशू, ठीक है. और उससे क्या होता है ना, लाइक ऐसे इश्यूज जब सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो लाइक पीपल, लोगों का जो रिलेशन है वर्कर्स के साथ, वो एक अच्छा होता है. एंड कंपनी को भी यही चाहिए, दैट द पर्सन हु और एम्प्लॉय who is working from 1 year, they want that he should work with the company for 10-15 for a long time, ठीक है, for a long time. So that's why there's conflict resolution. So we had seen many parameters. जैसे starting में I had covered कि importance of soft skills क्यों जरूरी है, ठीक है. इसके अलावा is related there are several videos which I post on my channel as well. So it's Abhishri Academy. Sir will share with the link कि जिससे same video I will deploy on my channel as well, ठीक है. So you can watch there as well कि ऐसे aptitude या फिर soft skills या apart from दूसरे भी बहुत सारे videos है. I'm post deploying on that. Fine. Yeah. So what we had seen initially, we had talked about aptitude, its importance, okay, problem solving skills, decision making skills, analytical as well as application ability of an individual, prediction and observation of power. इसके बाद एप्टीट्यूड का और क्या है, तो मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेशंस, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है. उसके अलावा competitive exams, job interviews, each and every exam nowadays is having entry criteria as an aptitude. So it's one of the most important parameter, aptitude क्यों चाहिए, या फिर इससे कंपनी को क्या मिलता है. तो आप लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तो होगा, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इज जज्ड फ्रॉम यूएस साइड बाय conducting these aptitudes, ठीक है. what we had seen, soft skills में हमने कौन से पैरामीटर देखे, like we had seen it's a paramount. Soft skills is going to act like a paramount to reach the highest ladder of the corporate, ठीक है. Now उसके बाद हमने देखा कि like what are the different parameters, कि कौन से parameters है. First we had seen like communication, why it is needed. Next what we had seen, verbal, non-verbal communication, ठीक है. उसके बाद we had seen creativity, why creativity is needed, leadership, problem solving approach, ठीक है. teamwork क्यों चाहिए, critical observation, why we need critical observation, and lastly that is conflict resolution. Fine. Yeah. So this is the end of aptitude as well as soft skills, and now we are going to see that is like impacts or sectors, what will be the different sectors, what will be impact, what will be market scenarios, and अभी जो लोगों की placement हो गई है तो in that case क्या होगा. So ठीक है. So first of all अभी before starting this, like keeping in mind कि like यहाँ पे बहुत सारे students ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता है. So we can't start directly with क्या sectors में कैसे impact होगा. तो before that I will explain a concept of sector क्या है actually, ठीक है. Now, and one more advice I would like to give. See, like whenever you are making any opinion, for example, if you are making any opinion regarding economy, अभी ये थोड़ा सा economy से related concept है, ठीक है. तो refer such a person कि जो
जिनका सच में कुछ तो रिस्पेक्ट है, दोज आर रेप्यूटेड पर्सन. फॉर एग्जांपल रघुराम राजन. इकोनॉमी के बारे में अगर आपको कोई भी डिसीजन लाइक आपको कुछ कमेंट करनी है, आपको कुछ बोलना है, तो रेफर दीज सोर्सेस. रघुराम राजन हो गए, या फिर इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं, रेफर टू देम. अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड ARC रिपोर्ट होता है इंडिया का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है, तो वो रेफर करो. या फिर इफ यू टॉक अबाउट न्यूज़पेपर्स, सो दिस इज द डेटा which I had taken from Economics Times, ठीक है. Economics Times आप रेफर कर सकते हो. द मिंट करके एक एप्लीकेशन न्यूज़पेपर है, वो आप रेफर कर सकते हो. द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस, दीज आर रेप्यूटेड channels or newspapers. So while making any opinion or while making any comment, so you should refer these person. And why I had told you this, the thing is like अभी क्या होता है ना, like बहुत सारे लोग हैं, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ गया, उसके ऑन दैट बेसिस दे कमेंट, सो इट्स ऑफ नो यूज, इट्स यूजलेस कंटेंट, ठीक है. तो रेफर दीज कंटेंट्स. फॉर एग्जांपल अगर आप फॉलो करते हो कोई भी आप फॉर एग्जांपल फेमस पर्सन, कोई भी एक फेमस पर्सन या यूट्यूबर है, बहुत फेमस है, और उसके फॉलोअर्स मिलियन इन मिलियंस ही हैज फॉलोअर्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि ही इज एक्सपर्टीज इन इकोनॉमी. नो, you can follow him but don't make your opinion on the basis of his videos, ठीक है. तो refer such sources, ठीक है. हाँ, now अभी हम I will explain sectors, ठीक है. Now if you talk about India's overall GDP, there are 3 sectors. Overall actually there are 4 sectors, but in calculation of GDP there are 3 sectors, ठीक है. अभी first sector that is primary. अभी ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, तो लाइक आपका फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, ऑल दिस सेक्टर्स, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, ठीक है. सेकंड थिंग दैट इज secondary sector. What is secondary sector? Secondary sector is also called as manufacturing sector. अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या आता है, तो लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, ये आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. नाउ थर्ड सेक्टर दैट इज टर्शरी सेक्टर. अभी टर्शरी सेक्टर क्या है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी हम बोलते हैं, ठीक है. अभी सर्विस सेक्टर में क्या, तो एनीथिंग और एनी सर्विस व्हिच यू प्रोवाइड, anything which provides some kind of service, that is service sector. Banking, finance, service, insurance, उसके बाद different classes, academies, this comes under service sector, ठीक है. अभी and last that is quaternary, ठीक है. अभी ये quaternary क्या है, अभी like when we talk about GDP of India, तो ये जो first 3 sectors I had told you, तो इनके फाइनल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करके लाइक इंडिया की जीडीपी निकाली जाती है, ठीक है. एंड फोर्थ सेक्टर दैट इज क्वाटरनरी सेक्टर. इसमें क्या होता है, इसमें आता है एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ नॉट सेक्टर बट हेल्थ, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है. अभी ये हमने देखा एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्टर्स, फाइन. या नाउ we will jump back to sectors which will bounce back quickly. Abhi of course now we had seen ki like this is the situation COVID-19 ya fir the pandemic situation which has been arrived, that is corona. It is not a challenge which is faced by a district or by a state or by a country. It is a global challenge, fine. Yeah, तो what will be the sectors that will bounce back quickly? ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर बोला है सेक्टर का क्या है, सो होप यू गाइस क्लियर विद दैट कंसेप्ट. सो ऐसे कौन से सेक्टर है which will bounce back quickly, कौन से सेक्टर रहेंगे, सो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग. So these are the sectors which will bounce back very quickly after COVID-19, ठीक है. Apart from this, sectors which are curbed by Indian government, curbed मतलब जिसपे गवर्नमेंट ने restrictions डाले हुए हैं, so ऐसे sectors की जो immediately bounce back हो जाएगी. Now ये जो मैं बोल रहा हूँ, it is totally data taken from the Economic Times, ठीक है. So you can rely on that, like you can trust on it, ठीक है. Apart from this, like next parameter क्या है, which will be the sectors which will bounce back. अभी I had told you like sectors curbed by Indian government. जैसे for example रेलवे पे like restrictions डाले हुए, एयरपोर्ट्स पे restrictions डाले, तो जैसे ही ये restrictions निकाले जाएंगे, these sectors will bounce back quickly, ठीक है. हाँ, and first 3 sectors which we had seen, transportation, storage and warehousing, ठीक है. Now
next parameter about sectors that will bounce back, that is demand for essentials. Demand for essentials म्हणजे काय? तर in short ऐसे sectors की जो which are like day to day like आपकी वो need होती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपलं like you can take an example of volatile market, ठीक आहे, की ज्याचा प्राइस खालीवर होतो, ते पण एक प्रकार आहे. that thing will bounce back quickly, ठीक है. Now this was the first thing, like sectors which will bounce back, ठीक है. Now what will be the sectors that will see uptick in the uh, COVID-19 situation or after COVID-19 situation? अपटिक मतलब क्या? तो लाइक ऐसे कौन से सेक्टर हो गए कि जिसमें हमें ग्रोथ दिखेगी, ठीक है. सो सेक्टर्स व्हिच बिलोंग्स टू और सेक्टर्स लाइक ई कॉमर्स, होम डिलीवरी, so these are some of the sectors which will see uptick after COVID-19 situation, ठीक है. Now अभी मैंने सेकंड पॉइंट आपको बोला था कि सेक्टर्स कर्व्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो कि जो वो इमीडिएटली रिवर्स बैक होगी. तो इसमें कौन से सेक्टर्स और आते हैं? तो वो आते हैं ट्रैवल, या फिर स्टेइंग इन होटल्स, फ्लाइंग ओवरसीज, मॉल्स, पब्लिक प्लेसेस, ठीक है. नाउ इसके बाद आई एम गोइंग टू कवर कि विच आर द सेक्टर्स दैट विल नॉट बाउंस बैक, ठीक है. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सेक्टर्स कर्व्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, वो बाउंस बैक हो जाएंगे. बट गवर्नमेंट विल टेक सच अ डिसीजन कि जहां पे पब्लिक बिहेवियर जो है वो अगर ज्यादा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट विल थिंक ट्वाइस और थ्राइस टू ओपन अप दैट सेक्टर्स, ठीक है. नाउ व्हाट आर द सेक्टर्स दैट विल नॉट बाउंस बैक क्विकली? पहले हमने देखा सेक्टर्स दैट विल बाउंस बैक क्विकली, उसके बाद हमने देखा व्हाट आर सम ऑफ द सेक्टर्स व्हिच विल सी अपटिक और व्हिच विल सी द ग्रोथ after COVID-19 situation. And now like which are the sectors that will not bounce back quickly, ठीक है. कौन से ऐसे सेक्टर हो गए कि which will not recover, which will not bounce back, ठीक है. so ऐसे sectors which depends on people's behavior. अभी people's behavior मतलब क्या? तो जैसे आप पहले कैसे होता था, like you used to stay in hotels, ठीक है. वो इसमें क्या दिखेगा, like it will take time to recover. malls, उसके बाद ट्रैवल, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, या फिर टूरिज्म, अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लाइंग ओवरसीज, ठीक है. ये जो सेक्टर्स है, होटल सेक्टर, सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स व्हिच विल नॉट बाउंस बैक इमीडिएटली, ठीक है. फाइन. अभी आई हैड टोल्ड यू सम ऑफ द सेक्टर्स. नाउ आई विल टेल यू लाइक फ्रॉम लास्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस, लाइक देयर आर टू सेक्टर्स कि जहां पे वी हैड सीन there are a lot of impact on those sectors but that recovered very immediately. तो ऐसा बोला जाता है कि टूरिज्म एज वेल एज एविएशन, ठीक है, ये दो सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पे पास्ट पे भी इम्पैक्ट हुआ, बट दोज आर द सेक्टर्स फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस हु हैड रिकवर्ड वेरी अर्ली, ठीक. सो वो भी आपको एक माइंड में रखना है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर द सेक्टर्स दोज आर इन बूम राइट नाउ एंड विच विल बी इन बूम आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन. उसके बाद में भी बूम में रहेगा, अभी भी बूम में है. तो सबको लाइक आपने देखा होगा लाइक पूरे इट्स अ सिचुएशन, पूरा लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था एक्सेप्ट मेडिकल, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है. सो फार्मा, मेडिकल, हेल्थ सेक्टर, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वेजिटेबल्स की जो हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है. प्राइमरी सेक्टर्स, वेजिटेबल्स एंड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस. 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के क्लासेस स्टार्ट हो गई जूम पे. आई वाज लाइक रियली सरप्राइज्ड, बाप रे. So you can understand कि जो भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, I had told you two things, e-commerce as well as home delivery. These are the two sectors which will see uptick, which will see growth. So in that case, pharma, you can include pharma, medical, health, digital companies, companies providing digital services, ठीक है. Vegetables, telecommunication, ठीक है. जो भी ऑनलाइन है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ इसमें दिखेगी, ठीक है. फाइन. अभी इसमें लाइक आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट. सी लाइक एवरी बिजनेस रन्स ऑन प्रॉफिट, ठीक है. तो कंपनी क्या करेगी? डेफिनेटली अगर कंपनी, इफ अ पर्सन हु हैड स्टार्टेड अ कंपनी, ही विल लुक फॉर प्रॉफिट. अगर वो बिजनेस कर रहा है
तो इन दैट सिचुएशन बहुत सारी देयर आर लॉट ऑफ यू कैन सी इन शेयर मार्केट एज वेल कि अगर आप IRCTC का शेयर देखते हो तो इट वाज लाइक 1500 2000 तक उसका शेयर ऊपर गया था, बट नाउ इट्स लाइक 800 900 ऐसे कुछ चल रहा है। तो इन दैट केस इसमें हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि जो जिनका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। फाइन। तो इन दैट केस व्हाट कंपनीज विल डू, क्या करेगी कंपनीज एंड हाउ इट मैटर्स, ये आपको आपके लाइफ में रिलेट करना है। ठीक है, तो कंपनी विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर एन अल्टरनेटिव विच इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। बात समझ रहे हो आपको? ठीक है, सो all those digital companies or companies which are providing digital services, now we will compare or we will relate this point with engineers or those all those students कि आपको इसमें क्या करना है। तो start doing certification in masters, जैसे लेटेस्ट emerging technologies जैसे मशीन लर्निंग है, इथिकल हैकिंग है, डिजिटल या फिर डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर क्रिप्टो करेंसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। सो दीज आर द लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द मार्केट, या फिर ऑटोमेशन है। ठीक है, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग्स। उससे क्या होगा ना, इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड दिस सर्टिफिकेशन विल add a quite good value to your resume and it will help to survive you in the market. It's my personal opinion. So rather than doing all courses, do such a course. जैसे for example आप जैसे कोई भी ले सकते हो, ethical hacking है, artificial intelligence है, तो ऐसे कुछ करो कि जिसमें कंपनी can't deny you। ठीक है, fine. So this is the end of sectors कि कहाँ कहाँ पे impact होगा and what are the different sectors which first we had seen the sectors which will bounce back। ठीक है, that is transportation, storage, warehousing, apart from the sectors curbed by Indian government and demand for essentials। ठीक है, these are the three things which will bounce back immediately। उसके बाद we had seen what will be the sectors that will see uptick or which will see growth, जैसे e-commerce हो गया, home delivery हो गया, ठीक है, या फिर फार्मा, मेडिकल, हेल्थ, डिजिटल कंपनीज, टेक्नोलॉजी बेस्ड। ठीक है, इन सब चीजों में तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, these are the sectors which will see uptick। second thing like उसके बाद हमने क्या देखा, we had seen कि what are the sectors that will take time or which will not overcome, which will not recover quickly or which will not bounce back quickly। तो sectors that depend on people's behavior। people's behavior मतलब क्या, malls, theaters, flying overseas, tourism, travel, staying in hotels। ठीक है, it will take time to recover। ठीक है, now अभी ये हमने देखा what, अभी इसमें मॉरल कुछ तो चाहिए, लाइक इंडिया हैड फेस्ड दिस चैलेंज, व्हाट मॉरल वी शुड टेक फ्रॉम दिस। सो अब अगर आप लास्ट के कोई भी इंडियन बजट उठा के देख लो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इन ह्यूमन कैपिटल, इन हेल्थ सेक्टर, इन एजुकेशन सेक्टर, इसमें हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है, हार्डली 2 to 3% ऑफ आवर GDP। मतलब अगर आपका 100 इनकम है, उसमें से आप एजुकेशन पे कितना डोनेट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 रुपीस। सो इसमें हमने क्या सीखना चाहिए, तो बाय फ्रॉम दिस सिचुएशन that government should start investing or people should start investing in education sector, awareness programs, या फिर government should massively ramp up for the larger commitment towards this sectors। ठीक है, this is the first thing which we should learn from this situation। and second thing, अभी देखो लाइक इंडिया में ऐसे दो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड है। फाइन, अभी कौन सी वर्ल्ड वाइड है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हमारे जो पिल्स होते हैं, लाइक जो ड्रग्स होते हैं, इट हैज डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। या फिर कोई ऐसा एक बेसिक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो आपको मसाले पता है, इंडिया के जो मसाले होते हैं ना, इसको भी बहुत डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। सो दिस कंपनीज जो भी ये बनाते हैं, तो दे शुड लर्न फ्रॉम इट दैट वी शुड become self-sufficient। They should start working on becoming self-sufficient। ठीक है, these are the two lessons that we should learn from it। ठीक है, fine। Now we will see the market scenarios की जो आपको बहुत important है। अभी मतलब हायरिंग प्रोसेस क्या रहेगी, मार्केट सिनारियो क्या रहेगा, उसके बाद जिनकी प्लेसमेंट हो गई है वो बच्चों का क्या है। अभी बहुत सारे आपकी जो प्लेसमेंट्स है, यही मंथ की ज्वाइनिंग डेट्स होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की।
but it may or it has been delayed for December, January, June, ऐसे है, right? So on this point, like we are going to focus now. ठीक है? So according to industry experts, according to economists, ठीक है, अगर आप इंडिया का ओवरऑल सिनारियो देखते हो तो नियर अबाउट ऑल सेक्टर्स इज अफेक्टेड, नियर अबाउट 60 to 65% पूर्ण सेक्टर से अफेक्ट झालेले आहे. ठीक आहे. नाउ व्हाट इज दिस अफेक्ट? अफेक्ट हुए मतलब क्या हुआ? मीन्स वी हैड ऑब्जर्व्ड ड्रॉप रेट्स, डिलेड, कैंसलेशन ऑफ इंटरव्यूज. ठीक है, ये जो चीजें या फिर हायरिंग प्रोसेस, इंटरव्यू शेड्यूल जो होते हैं, ये जो चीजें होती है इसमें थोड़ा हमने डिले देखा, ड्रॉप रेट्स देखा. दैट इज व्हाट वी हैड सीन. एंड ये पूरे ओवरऑल अगर आप कंट्री के बारे में देखते हो तो नियर अबाउट 60 to 65% इट हैज बीन अफेक्टेड. फाइन. नाउ वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इन दिस इज, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू, ये जो हायरिंग प्रोसेस है, हायरिंग डेट्स है, इट इज गोइंग टू डिले. ठीक है, फाइन. जैसे और एक पॉइंट मैंने कवर किया है, टेक्नोलॉजी. अभी कंपनी को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो कंपनी विल लुक फॉर टेक्नोलॉजी एज एन अल्टरनेटिव, एंड आई हैड एडवाइज्ड यू ऑन दैट एज वेल. तो हमें ये दिखा. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक ओवरऑल अभी पहले जो हमने लाइक ये जहां तक हमने जो देखा, इट वाज करंट सिचुएशन और द ओवरऑल सिचुएशन. ठीक है, नाउ वी विल बी लाइक लिटिल बिट स्पेसिफिक. ठीक है, अभी ओवरऑल हायरिंग प्रोसेस जो है, स्पेशली इन सर्विस सेक्टर, तो वी हैड ऑब्जर्व डिले, ड्रॉप रेट, स्लो डाउन. ठीक है, नियर अबाउट 10 to 15% इन सर्विस सेक्टर. मतलब जो मैंने बोला कि एनीथिंग विच प्रोवाइड सर्व्हिसेस. ठीक आहे, सर्व्हिस सेक्टर 10 ते 15% त्याच्यावर इम्पॅक्ट झालेला आहे. पहिले आपण पाहिलं करंट ओव्हरऑल सिनारिओ 60 to 65%. आता हे जे 60 to 65% आहे, या फिर आता मी जे सांगितलं की स्पेशली सर्व्हिस सेक्टरवर एक 10 ते 15% याचा इम्पॅक्ट झालेला आहे. तो इन दॅट केस जर कधी तुम्हाला त्याचं रिअल टाइम एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर इन दॅट केस व्हॉट यू कॅन सी, BFSI, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, डिलिव्हरी वगैरे, ह्या सेक्टरमध्ये, इन दिस सेक्टर्स देर इज ऑलवेज हायरिंग. हर बार हायरिंग होती है, कभी भी आप जाओ. बट नाउ डेज इट हैज बीन रिड्यूस्ड. ठीक है, आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो. यू कैन सर्च ऑन गूगल एज वेल. फाइन. या नाउ जैसे मैंने बोला कि इट इज नॉट अ चैलेंज विच इज स्पेसिफिक टू एनी स्टेट, स्पेसिफिक टू एनी कंट्री. इट इज अ ग्लोबल चैलेंज. सो जो भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है, जो भी ग्लोबल प्रोजेक्ट्स है, जो ऑल प्रोजेक्ट्स विच आर रनिंग और विच कंपनीज आर वर्किंग सिंस लास्ट 10 to 15 years, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे भी इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा. ठीक है, फाइन. नाउ दैट्स व्हाट अबाउट हायरिंग प्रोसेस. नाउ जैसे और हाँ, नाउ व्हाट विल बी द सेक्टर्स, ऐसे कौन से सेक्टर होगी कि जहाँ पे हायरिंग ज्यादा होगी. तो जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में हैड कवर्ड कि मैंने आपको एडवाइस किया कि कौन से सेक्टर में आपने अपना करियर चूज करना चाहिए. तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स, कोई भी सेक्टर लो जिसमें डेफिनेटली बूम रहेगा. टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स, डिजिटल कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज. तो ऐसे अगर कोई भी आपको ऑप्शन दिखता है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट गो फॉर इट. ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन. एंड लास्ट पॉइंट, और क्योंकि क्या है ना, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू दिस, ये कोविड सिचुएशन के पहले भी हायरिंग प्रोसेस चालू थी. लाइक इट वाज ऑन. नाउ इन द सिचुएशन, इन द कोविड सिचुएशन आल्सो इट्स ऑन, एंड इसके बाद भी ये इट विल बी ऑन. मतलब हायरिंग प्रोसेस चालू ही रहेगी इन दैट केस. ठीक है. नाउ लास्ट, दैट इज बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होगा कि सर लाइक व्हाट अबाउट आवर प्लेसमेंट, जिनके कैंपस से प्लेसमेंट हो गई है. ठीक है, तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट और फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, डेफिनेटली आपका जो भी ज्वाइनिंग डेट है, स्पेशली बी स्टूडेंट्स हु हैड पास्ड आउट, मतलब अभी जिनका पास आउट ईयर है और उनकी प्लेसमेंट ऑलरेडी हो गई है, तो डेफिनेटली इसमें डिले दिखेगा. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि लाइक आपकी ज्वाइनिंग डेट इसी मंथ की होगी या फिर नेक्स्ट मंथ की होगी, बट इट मे गेट डिले टिल दिसंबर और जैन तक, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. ठीक है, सो दिस वाज द मार्केट सिनेरियोज एंड हायरिंग प्रोसेस अबाउट
for all the engineering students and for all sectors for the students who are from different streams as well. ठीक है, ये सबके लिए है, right? Next point, like of course it is the end of different sectors, impact, market scenarios, all those things. Now we'll be coming to the point career opportunities after COVID-19, after engineering, या फिर इसके अलावा भी the students who are attending this webinar who are from the background of BCA, BBA, MBA या फिर 10th 12 जो भी हो, ठीक है, उनके लिए career opportunities क्या हो सकती है, that's we are going to see. Now अभी see like there are several students who must be wondering, who are confused कि क्या करना चाहिए, like what is the career, or it is one of the challenge in front of them कि like क्या यार क्या choose करूँ मैं, where I should go, क्या मेरा, what is my target, what is my ambition, what is my wish, where I should reach. So there are lot of questions in the student's mind. So there are, I had sorted out near about 10 to 15 parameters जिसमें आपको पता चलेगा on your interest you can build a career, ठीक है. So और इसके बाद और एक बात इसमें बोलनी है, यहाँ पे एक this thing which I had observed, that is lack of awareness. After 12th लोगों को hardly 2 या 3 options पता होते. Even like if you talk about families, like उनको भी पता होता है एक तो डॉक्टर बनना है, एक तो इंजीनियर बनना है, और ज्यादा से ज्यादा वकील बनना है, या फिर कुछ तो MBA करना है, इतना ही पता होता है, right? So there is lack of awareness. So we will cover 10 to 15 parameters. Fine. अभी सबसे पहले we'll start with basic, that is campus placements, ठीक है, ये जो सबको पता होता है कि क्या करना चाहिए भाई, campus placements and what is needed, ठीक है. campus placements है क्या important है, what do you think? तो इसमें there are 2 things. First is your CPGA score, ठीक है, CGPA score, not CPGA, it's a CGPA score. CGPA score क्या है? It's overall performance, ठीक है, मतलब आपका academics, आपके marks, आपके grades, ठीक है, that is what is CGPA score. Second thing which is most important for campus placements is aptitude, soft skills, and your extracurricular activities. I'm giving stressed, or I'm focusing on this point, extracurricular activities. अगर आप इसमें participate करते हो, it will help you in all those things which I had told you in soft skills, कि जो आपको build करनी है, तो वो extracurricular जो activities होती है, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आपके develop होती है. So campus placements के लिए 2 चीजें important है. Maintain your CGPA score, आपका overall performance aggregate अच्छा होना चाहिए in any situation. And 2 चीजें तो मैंने आपको starting में बोली, be genuine with your placements. ऐसे इसमें कोई selfishness वगैरह कुछ नहीं है. Be genuine with your placement. अगर नहीं होती है, be in touch with Raul sir. आप, और मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है, don't be genuine with your like other statement. आपने कुछ NGO वगैरह नहीं खोला है, you are not working for social cause. जब आपके पास कुछ तो ऐसी authority हो, you are like authorized person, तब जाके उसके बारे में आप सोच सकते हो. But better you think of yourself कि आपको करना है तो करना है, that's it. Fine, yeah. Like 2 things, CGPA score and your aptitude, soft skills and curricular activities. Curricular activities में क्या होता है ना, आपकी जो leadership, आपका communication, creativity, ये सब build होता है, ठीक है. This is the first thing which about career opportunities. Second thing which we are going to discuss, that is higher studies. अभी there are several students who wants to go abroad, या फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मास्टर्स करना है तो फॉरेन से करना है, या फिर कुछ ME वगैरह करना है, ठीक है. So there are several options for masters as well. So see, for masters there is eligibility criteria, that is GATE, ठीक है. आपको GATE करना है अगर आपको मास्टर्स करना है तो. For engineering students it's GATE, and इसमें भी options होते हैं IITs and NITs. Like अभी IIT और NITs क्या concept है? In India overall there are 21 IIT colleges, and if you talk about NIT, it's like near about 31 colleges. Yeah, 31 colleges. अभी इसमें difference क्या है? So both the colleges, IITs as well as NITs, both have national importance, ठीक है, national scope, national importance है. तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा फिर what is difference between, मतलब क्या है, क्या फिर difference क्या है? So difference is the only thing कि कॉलेज का reputation,
आपको वहाँ पैकेज कितना मिलता है, या फिर हाउ मच व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द काउंट ऑफ यंग लीडर्स हु पास आउट फ्रॉम दोज कॉलेज, रेपुटेशन ऑफ कॉलेज, प्लेसमेंट्स कितना होती है, दिस इज व्हाट इज दीपक्स, दैट्स इट, ठीक है। तो गेट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर IITs और NITs. Later, like we'll move to second parameter in higher studies, that is MS आप कर सकते हो abroad जाके. There are 3 exams, that is TOEFL, IELTS and GRE. अभी I will focus on one thing. अभी ये तीनों जो एग्जाम मैंने आपको बोली है, in that exam basic है aptitude, nothing like that, aptitude and your English. अभी TOEFL अगर आप देखते हो, it's the test of English language. फुल फॉर्म ही देख लो, लाइक इट विल टेल यू अबाउट इंग्लिश और एप्टीट्यूड, बेसिक स्कोर होता है। IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद या फिर GRE क्या है, तो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी नाउ इफ यू टॉक अबाउट IELTS, सो इट इज स्पेसिफिकली मतलब मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल, ऐसे कुछ ब्रांचेस के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाके मतलब जर्मनी वगैरह जाके आप MS कर सकते हो। If you talk about TOEFL or GRE, it is like 340 marks की एग्जाम होती है, like out of that like you should get at least 320 score, ठीक है। तो countries like Canada, US, Australia, New Zealand, मतलब beautiful countries, वहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि like I should complete my masters from those countries, fine. तो in that case like GRE is the best option, GRE and TOEFL, ठीक है। और उसको क्या चाहिए, like eligibility जैसे मैंने बोला, GRE it's an exam for MS. इसका ओवरऑल स्कोर आपको मिनिमम 3 आउट ऑफ 340 यू शुड गेट एटलीस्ट 320 की जो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। मतलब जैसे लाइक इफ यू वांट रियली अ गुड यूनिवर्सिटी देन यू कैन स्कोर, इफ यू वर्क फॉर इट देन यू विल गेट द डेफिनेटली यू विल गेट द ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, ठीक है। नाउ दैट इज अभी ये पहला हमने देखा गेट, उसके बाद हमने देखा लाइक MS फ्रॉम अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड जाके आपको करना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि जिनको इंटरेस्ट है खुद के इसमें, लाइक जैसे एकेडमिक्स में, रिसर्च में एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक्स, इन सब चीजों में बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनको इंटरेस्ट होता है। तो इन दैट केस लाइक व्हाट इज करियर ऑप्शन फॉर यू गाइस। सो यहाँ पे एक एग्जाम है जैम, जॉइंट एडमिशन टेस्ट, ठीक है, जिसके लिए मिनिमम एग्रीगेट यू शुड हैव 55%, ठीक है, कि मिनिमम एडमिशन 55% एग्रीगेट चाहिए एंड यू शुड बी ग्रेजुएट, ठीक है। अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खुद के एकेडमिक्स में रिसर्च, खुद के फील्ड में अगर आपको रिसर्च में जाना है या फिर खुद के फील्ड में एकेडमिक्स में जाना है, तो इन दैट केस यू शुड गिव दिस एग्जाम, दैट इज जॉइंट एडमिशन टेस्ट, ठीक है, फाइन। अभी दिस वर 3 पैरामीटर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस हायर स्टडीज में और एक पैरामीटर है, वो है नेट या फिर JRF इट्स लाइक जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या फिर CSIR या फिर नेट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। नेट या फिर CSIR, दीज आर द बोर्ड्स व्हिच कंडक्ट दिस एग्जाम। तो जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक माय एग्जांपल, आई एम गोइंग टू as I'm pursuing masters from political science, I can give JRF और दिए कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, एंड ये देने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर PhD एज वेल, ठीक है। अभी इसमें गवर्नमेंट ने और एक बात इसमें ऐड की है, दैट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आपका PhD के लिए नंबर लगता है थ्रू JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप से, तो इन दैट केस वो 2 साल में आपको गवर्नमेंट नियर अबाउट 32,000 to 42,000 आपको गवर्नमेंट स्टाइफंड देती है, ठीक है। एंड इसमें और एक पॉइंट जो गवर्नमेंट ने ऐड किया है, लाइक यू गेट दी एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है व्हेन यू अप्लाई फॉर PhD और व्हेन यू गो फॉर लाइक जब आप JRF क्रैक करते हो, ठीक है। सो दिस वर द 3 to 4 पैरामीटर्स ऑफ हायर स्टडीज। जैसे सबसे पहला पैरामीटर हमने देखा कि गेट, ठीक है। सेकंड पैरामीटर वी हैड सीन MS, अब्रॉड से आपको मास्टर्स करना है। थर्ड थिंग वी हैड सीन जैम, दैट इज जॉइंट एडमिशन टेस्ट, खुद के इसमें आपको रिसर्च में जाना है, खुद के फील्ड में आपको यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू मेक योर करियर इन योर ओन फील्ड, ठीक है। तो फॉर दैट जैम JAM टेस्ट है। PhD के लिए भी आप जा सकते हो, या फिर कोई भी अभी ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, जैसे मेरा इंटरेस्ट है,
मेरा इंजीनियरिंग करने के बाद देयर मस्ट बी देयर लाइक बहुत लोग मुझे पूछते हैं लाइक आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाई यू हैवंट कंप्लीटेड व्हाई यू हैवंट गॉन फॉर एमई एमटेक, बट इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. मुझे इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है. सो फॉर दैट पर्पस लाइक आई हैड अप्लाइड, ठीक है. सो वो आप ऑन योर इंटरेस्ट लाइक यू कैन चूज from higher studies, ठीक है. टू पैरामीटर्स we had seen. थर्ड पैरामीटर that is teaching professor और own coaching classes, recruiters वगैरह क्लासेस वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो. So जैसे like teaching profession is also one of the best profession, but इसमें भी बहुत सारा struggle है. You have to start with scratch. आपको after completing your B, you can't go directly in any college as a professor. First of all, you have to work with diploma colleges, and after gaining the experience, like you can climb the highest ladder as well, ठीक है. टीचिंग प्रोफेशन it's one of the option. Now next point, that is public sector undertakings, fourth point. So what is this public sector undertakings? अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कि जिनको लगता है कि यार मैं कुछ करूंगा तो गवर्नमेंट में ही करूंगा, राइट. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है. तो इन दैट केस जैसे देयर आर टू कंसेप्ट. एक होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो आई विल टेल यू द डिफरेंस. सो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसका पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं कि कौन से एग्जांपल्स. जैसे आपने सुना होगा बेल, BHEL, SAIL, ONGC, ठीक है, AAI, IOCL. दीज आर दी गवर्नमेंट कंपनीज. अभी एंटरप्राइजेस मतलब क्या, तो मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो गवर्नमेंट का अगर एनी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के 100% शेयर्स, पूरी कंपनी, टोटल entire company is owned by government. So in that case it can be called as public sector enterprise, ठीक है. Now if you talk about public sector unit, तो गवर्नमेंट के इसमें 49 या फिर 51% शेयर्स होते हैं, ठीक है. मतलब कोई थर्ड पार्टी, दूसरी और एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है. तो इन दैट सिचुएशन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स 51% शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के. तो बट इट इज ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो भी एक गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है. फाइन. तो ऐसे अगर आपको कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में जाना है तो इन दैट केस गेट इज द ओनली ऑप्शन. जितना आपका स्कोर अच्छा रहेगा ऑन दैट बेसिस यू विल गेट दी कंपनी. अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो जितनी सैलरी आपको चाहिए उतनी सैलरी आपको इस कंपनी में मिल जाती है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक यू हैव सिक्योरिटी. अभी ये सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज सिक्योरिटी. फॉर एग्जांपल अभी देखो ना, COVID-19 इज अ सिचुएशन व्हिच इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. सो इन दैट केस क्या होता है कि एनी टाइम कंपनी विल आस्क यू लाइक, और कंपनी विल से यू कि लाइक वी डोंट नीड यू, यू कैन लीव द जॉब, यू आर फायर्ड, ऐसे बोल सकती है. बट इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज, लाइक आपको सिक्योरिटी होती है, वो आपको इमीडिएटली नहीं निकाल सकते. फाइन. सो ऐसे ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब्स में होती है, ठीक है. Now this was about public sector undertakings. Next what we are going to see, that is experts or certification. Certification experts, जैसे मैंने already इसके बारे में बात की है, तो जैसे I will repeat it again. अभी certification in general term I will explain you what is certification. Certification मतलब क्या, there are 100 students sitting in a queue. What is unique in that? अगर कोई आप हो, what is unique in you? अगर इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछता है, आप व्हाई आई शुड हायर, मैं तुझे क्यों हायर करूं भाई, मेरे कंपनी के लिए तेरे से क्या फायदा है. तो इन दैट केस दैट इज नथिंग बट अ सर्टिफिकेशन. अगर आप कर रहे हो तो ऐसे करो लाइक एनी कंसेप्ट, अगर आप वो कोई भी कंसेप्ट आप समझा सकते हो, यू कैन वर्क ऑन इट एंड यू नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दैट थिंग, दैट इज नथिंग बट अ सर्टिफिकेशन. और सर्टिफिकेशन मैंने आपको बोला कि लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इथिकल हैकिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ये डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इसमें आप सब करना चाहिए, ठीक है. ये फिफ्थ ऑप्शन था, दैट इज एक्सपर्ट्स और सर्टिफिकेशंस. अभी इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम मतलब क्या, तो लाइक कट थ्रोट कंपटीशन, नॉट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्रॉब्लम, बट आपको समझ में आता है कि लाइक समझ में आ जाएगी व्हाई आई टोल्ड कि लाइक प्रॉब्लम है, व्हाई आई हैड रेफर्ड प्रॉब्लम वर्ड, ठीक है. सो कट थ्रोट कंपटीशन क्या होता है. सो कट थ्रोट कंपटीशन इज अ कंपटीशन व्हिच इज स्ट्रांग, बट
a strong competition but in an unfair way without considering any harm caused to others. ये definition से आपको पूरा पता चलता है. It's a competition, it's a tough competition, but in a unfair way without considering any harm caused to the others. अभी ये जो कट थ्रोट कंपटीशन है, it is been observed in experts or certifications. Like अगर कभी भी ऐसे कंपनी में आप जाते हो तो ये चीजें होती है, ठीक है. So but you can refer for that, ठीक है. Next point which we are going to see, that is MBA, sixth parameter. अभी MBA, I will suggest it is one of the best option to reach the highest position in the corporate, ठीक है. एंड इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैट एग्जाम, CAT, कैट, ठीक है. सो जैसे अभी क्या होता है ना, आई विल टेल यू वन थिंग व्हिच आई हैड सीन. देयर आर सेवरल ऑफ स्टूडेंट्स, सेवरल वन माय फ्रेंड्स कि जिन्होंने क्या किया है, दे हैड वर्क इन बैंगलोर, हैदराबाद. अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैड इंडस्ट्री experience of near about 10 years, 8 years, 15 years. उसके बाद दे हैड स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है. उन्होंने वो छोड़ दिया. एंड लाइक अभी हम MBA के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है. तो MBA क्या करता है ना, लाइक व्हेन यू कवर MBA, व्हेन यू आर डन विद MBA, तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो एक 4-5 साल के बाद यू गेट बोर्ड कि यार क्या चल रहा है, मेरी लाइफ क्या चल रही है, वही रोज मैं जाऊंगा, वही काम करूंगा एंड घर वापस आ जाऊंगा. तो in that case, if you had covered MBA, तो you can switch to management in the company. मतलब क्या होता है, आपके टास्क बदलते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती है, ठीक है. कोडिंग नहीं, तो यू कैन स्विच, आप एक हाईएस्ट पोजीशन तक जा सकते हो. तो when you get after 4 to 5 years, it is best like you can switch to management as well, ठीक है. तो MBA इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड MBA के देयर आर सेवरल फील्ड्स जैसे HR, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है. ऐसे कोई भी इसमें आप अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप कर सकते हो. अभी बहुत सारे ऐसे लोग से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि उनको लगता है कि नहीं यार मुझे MBA भी करना है तो अब्रॉड से करना है. तो देयर आर सेवरल एग्जाम्स जैसे CMAT है, NMAT है, या फिर XAT है, या फिर SNAP है, या फिर हमारे जो टाटा ग्रुप्स होते हैं, ठीक है. तो टाटा ग्रुप एक एग्जाम कंडक्ट करती है TISS करके, ठीक है. वो एग्जाम से उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो. तो बाय गिविंग दैट एग्जाम्स, लाइक यू कैन go abroad as well as you can go in particular specific industry. टेस्ट करके एक एग्जाम है TISS, ठीक है. वो पर्टिकुलर के लिए. एंड पहले जो मैंने आपको बोला CMAT, NMAT, XAT, these are the exams for MBA to from abroad से आप MBA कर सकते हो, ठीक है. फाइन. MBA के बाद one of the option that is digital marketing, ठीक है. It is one of the emerging as well as very important sector कि जो आप choose कर सकते हो. And there are 2 platforms like कि जो जिनका reputation अच्छा है. One of the institute that is MICA, that is Mudra Institute of Communication. It is located in Ahmedabad. And second thing that is Upgrad, UPGRAD करके इंस्टीट्यूट है. उसमें से भी आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो. अब ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज दिस डिजिटल मार्केटिंग, क्या है ये, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू एक जनरल डेफिनेशन एंड देन विल टेक दी 2 एग्जांपल्स, रियल टाइम एग्जांपल्स, जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाए. सो जनरल एग्जांपल क्या है, टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रमोट योर ब्रांड एज वेल एज योर बिजनेस, या फिर आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर आपके ब्रांड को बड़ा करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज मतलब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है. इन शॉर्ट एक जनरल डेफिनेशन. नाउ अभी ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो अगर आप करते हो, इट्स लाइक 6 months कोर्स होता है या फिर 1 साल का कोर्स होता है. एंड आफ्टर दैट लाइक यू कैन गो इन दिस सेक्टर एज वेल. नाउ रियल टाइम एग्जांपल्स, इसमें आपको क्लियर पता चलेगा. जैसे मैंने आपको क्या बोला, जनरल एग्जाम डेफिनेशन कि इट्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रमोट टू प्रमोट योर बिजनेस एज वेल एज योर ब्रांड, ठीक है. ब्रांड बढ़ाने के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच होने के लिए आप
यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज नथिंग बट डिजिटल मार्केटिंग इन शॉर्ट. अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं. अभी रियल टाइम एग्जाम्पल 8 मार्च 2018 क्या हुआ था. इट इज वुमेन्स डे. ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड एज अ वुमेन्स डे 8 मार्च. और 8 मार्च को क्या हुआ था इन 2018. आप मैकडोनल्ड्स पता है आपको. मैकडोनल्ड्स का पहले का जो लोगो है दैट वाज एम, एंड ऑन द वुमेन्स डे दे हैड रिवर्स्ड इट. मतलब क्या हुआ, रिवर्स कर दिया. जैसे लाइक इट स्टार्टेड लुकिंग एज डब्ल्यू. तो इसका जो डिस्कशन है इट हैज मतलब इतना वायरल हो गया वो चीज. एक छोटी सी चीज है, क्या किया, सिर्फ लोगो चेंज कर दिया, दैट्स इट. तो ये लोगो चेंज कर दिया मतलब क्या किया, इट मींस पूरे सोशल नेटवर्किंग, न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट साइट्स, इस पे डिस्कशन स्टार्ट हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बातें होने लगी. एंड बातें होने के बाद पीपल स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स मैकडी. यार भाई कुछ तो डिफरेंट किया है एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है, तो डेफिनेटली इन दैट केस लाइक वी शुड गो. तो उनका जो प्रॉफिट है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो ब्रांड है, उनका जो द नेम ऑफ द मैकडी, वो अगर ये लेवल पे इट हैज रीच्ड टू दिस लेवल. आर यू गेटिंग माय कांसेप्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दैट इज नथिंग बट अ डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है, इसका और एक एग्जांपल आई विल टेल यू. विल टेक अभी KFC का एग्जांपल. ठीक है, अभी KFC के एग्जांपल में क्या हुआ था, लाइक व्हेन इसकी जो डिमांड थी इट वाज क्वाइट हायर, बहुत ज्यादा डिमांड थी. एंड KFC वाज नॉट एबल टू मीट दैट डिमांड, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच नहीं रहा था. मतलब जो लोग खाना चाहते हैं, लाइक पीपल आर डिमांडिंग बट दे वर लाइक उनको प्रॉब्लम आ रहे थे कि लाइक कैसे रीच करें. ठीक है, दैट वाज द चैलेंज दे वर फेसिंग. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लाइक जब तक ये इशू उन तक आया, लाइक व्हेन दे रियलाइज कि लाइक ये दैट इज द रियल इशू, लाइक उसमें क्या हुआ, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत इम्पैक्ट हो गई थी. एंड इन दैट केस उनका जो प्रॉफिट है इट वाज रिड्यूस्ड. सो उन्होंने क्या किया, दे हैड चेंज्ड KFC टू FC आणि K, FCK. ठीक है, KFC टू FCK. अगर आप कभी भी आप अभी जाते हो KFC में तो यू कैन सी लाइक वहाँ जो आपको खाने के लिए देते हैं तो उस पे FCK होता है. तो ये भी सेम चीज. तो न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजर्स इतनी ज्यादा बढ़ गए, लोग और ज्यादा उसके बारे में बोलने लगे, डिस्कशंस होने लगे. एंड ऑन दैट बेसिस दे हैड टेकन इट इन अ पॉजिटिव वे एंड दे हैड फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर इट एंड दे हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रॉपर डिलीवरी. ठीक है, तो ऐसे लाइक टू प्रमोट अ ब्रांड, टू योर नेम या फिर प्रॉफिट के लिए टेक्नोलॉजी का यूज, दैट इज नथिंग बट डिजिटल मार्केटिंग. तो हमने ये देखा माइका, इट्स वन ऑफ द एग्जांपल जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो. 6 महीने का कोर्स होता है या फिर 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको एक फंडामेंटल सिखाए जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, या फिर मार्केटिंग क्या है. मतलब जैसे देयर आर टोटल 11 गुरुज ऑफ मार्केटिंग. जैसे एक नाम आप ले सकते हो, फिलिप कोटलर. तो उनके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आपको सिखाए जाते हैं. फाइन. उसके बाद लाइक नेक्स्ट पैरामीटर है 8th पैरामीटर, दैट इज बिजनेस. आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वन ऑफ द ऑप्शंस. कि like but इसमें business में what I will suggest you, see if you had you had completed your engineering from electrical, computer, civil, जो भी हो, तो try to implement that knowledge in your business, then it will make a sense. नहीं तो क्या engineering करने के बाद like you are going in the field of hotels, it doesn't make any sense. या फिर कुछ it doesn't looks good, हो सकता है लोग होटल में जा सकते हैं. There are several students who several employees who had quit from company and they had started their own business. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. But what I will suggest कि अगर आप ऐसे कर रहे हो after engineering, if you are going in business, like for example कंप्यूटर का हम लेते हैं, तो what you can do, like अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो गए कि जो घर पे प्रोजेक्ट नहीं करते, दे खरीदते हैं वो 20,000, 40,000, 30,000 में. तो इन दैट केस यू कैन स्टार्ट योर दैट एजेंसी, नॉट एन एजेंसी बट कंसल्टेंसी आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें प्रोजेक्ट बना के देते हैं. तो ऐसे ये भी एक करियर आप ले सकते हो. टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. ठीक है, उसके बाद बिजनेस हो गया. नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स. अब ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, इट्स वन ऑफ द
इट इज वन ऑफ द ऑप्शन कि जो आपको पॉपुलैरिटी देता है, जो आपको बहुत सारा पैसा देता है, इफ यू हैव पेशेंस। ठीक है, अभी लाइक देयर इज अ मिथ इन स्टूडेंट्स माइंड कि अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप चूज करता हूँ तो आई विल बिकम रिच वेरी अर्ली। ठीक है, या फिर आई विल बी मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, या फिर इन माई स्टेट, बहुत जल्दी हो जाएगा। नो, ऐसा अगर मिथ आपके माइंड में होगा, डोंट गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स। इफ यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, इफ यू हैव दैट गट्स, then I will suggest you to go for entrepreneurship or startups. अब ये entrepreneurship होता क्या है, right? So I will tell you, entrepreneurship is a thing in which you should have unique idea. ठीक है, अभी ये जो डेफिनेशन है उसके बाद हम रियल टाइम एग्जांपल लेंगे, तब आप आके आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स a unique idea and in which you should have a problem solving approach. ठीक है, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के आपके पास गट्स होने चाहिए, यू शुड हैव दैट पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज नथिंग बट इन शॉर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। एंड उसमें और एक बात मुझे ऐड करनी है, बिफोर स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप यू शुड हैव एटलीस्ट यूनिक आइडिया, मैंने पहला बोला। सेकंड थिंग, यू शुड हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एंड थर्ड थिंग विच यू शुड हैव, इट्स अ कैपिटल। ठीक है, for startups, entrepreneurship and startups, you should have capital rather than उसके अलावा, या फिर आप कर सकते हो अगर ये तीन चीजें हैं। ठीक है, एंड अगर लास्ट कैपिटल नहीं है तो यू शुड हैव पेशेंस। फाइन। अभी जैसे मैंने बोला, इट्स यूनिक बिजनेस आइडिया, वी विल टेक 2 रियल टाइम एग्जांपल्स। अभी रियल टाइम एग्जांपल्स क्या है, तो आई विल मेक वन स्टेटमेंट। नाउ पेटीएम हैड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ कैश स्कैरसिटी। मतलब क्या, ऐसा हमें पहले कभी लगा ही नहीं था कि लाइक मैंने पैसे दिए मतलब वहां पे जाके, कि या फिर मैं ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। सो दैट टाइम इट वाज अ प्रॉब्लम, एंड अ पर्सन और अ क्लाइंट और ओनर ऑफ द कंपनी हैड दैट वैल्यू, लाइक मेरे पास प्रॉब्लम तो है एंड इवन आई हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्टार्ट विद पेटीएम। दैट इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक यूनिक आइडिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एंड यू शुड हैव दैट गट्स एज वेल। ठीक है, ये पहला था। इट मींस व्हाट, पेटीएम हैड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ कैश स्कैरसिटी। दैट इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप का बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, नाउ वन मोर एग्जांपल, दैट इज फ्लिपकार्ट रिमूव्ड द हैसल ऑफ शॉपिंग ऑफलाइन। आपने पहले कभी सोचा था कि मैं ऑफलाइन घर पे बैठ के मैं शॉपिंग कर सकता हूँ? नो, कभी भी ऐसे लगता था कि लाइक मॉल में जाना पड़ेगा, राइट? बट अभी आप घर पे बैठ के हेडफोन बुला सकते हो, आपको लाइक यू कैन शॉपिंग कर सकते हो, राइट? सो ये जो हैसल था, इट वाज रिमूव्ड बाय फ्लिपकार्ट, एंड दैट इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स। ठीक है, एंड इसमें सर्टिफिकेशंस होते हैं, यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। There are different reputed institutions. On that basis, like you can choose and you can go for it. You can choose as a career opportunity as well. It is one of the best examples, best option. ठीक है, that was the 9 point. उसके बाद like we are going to see armed forces or merchant navy. ठीक है, the 10th and 11th armed forces like Indian army इसको recruit करती है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, लाइक यू आर हाईली पेड जॉब्स, रिस्पेक्टेबल जॉब। इतना रिस्पेक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना रिस्पेक्ट होता है लाइक इफ यू हैव अ प्रॉपर डेस्टिनेशन, लाइक एक प्रॉपर प्रोफाइल। ठीक है, मर्चेंट नेवी क्या है, तो लाइक टू डील विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी क्या होता है ना, लाइक इंजीनियर्स आर कॉल्ड एज क्रिएटर्स, लाइक बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं लाइक क्रिएटिविटी करते हैं कुछ। मतलब क्या करेंगे, 2 दिन पहले क्या करेंगे, इजी सोल्यूशन पढ़ेंगे और 2 दिन में पेपर निकाल देंगे। So it is also one of, I call it as a creativity of an engineer. ऐसा मुझे personally लगता है, and even I had done the same thing in my engineering as well. दो दिन पहले सोना ही नहीं है, अगर सो गए तो like backlog लग जाएगा, and पेपर निकालना है तो क्या करना है, easy solution उठा के लेके आओ, पूरा easy solution पढ़ो, 5-6 क्वेश्चन पेपर कर दिए कि ये like पेपर क्लियर। एंड और एक बात, उसमें अगर 32 पेजेस है तो पूरे पेजेस फिल करके आने। It's the best mantra for engineers.
एंड कॉलेज में बहुत सारे अच्छी तरह से सर्वाइव करना है. डोंट गिव रिएक्शन, जस्ट गिव रिस्पॉन्स. आपको टर्म वर्क अच्छा मिलता है. So this was like about these things. So we had seen armed forces या फिर merchant navy. हमने देखा कि highly paid jobs respectable होते हैं. merchant navy कि जिसके अभी इसका लिंक कहाँ पे मिलती है, इसके अपडेट्स नोटिफिकेशंस कहाँ आते हैं. तो गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे यूपीएससी हो, यूपीएससी बोर्ड हो, या फिर इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आपको मिल जाता है. मर्चेंट नेवी की वेबसाइट्स होती है. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट उसके हिसाब से लाइक नोटिफिकेशंस आते हैं. ठीक है. सो ये हो गया आर्म्ड फोर्सेस, मर्चेंट नेवी. Later, I would like to talk upon share market. It's a 12th parameter of our career opportunities. शेयर मार्केट आप घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हो. ब्लॉगिंग हो गया, ये भी एक ऑप्शन है. ठीक है. ब्लॉगिंग क्या होता है? इट्स योर ओन वेबसाइट जिसके ऊपर आपके आइडियाज, आपके आर्टिकल्स होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर व्यूज आपको पैसे मिलते हैं. ठीक है. जितने एड्स उस पर ऐड करेगी, एड्स आएंगे या फिर गूगल ऐड करेगा उसमें आपके वेबसाइट पे, या फिर आपके आर्टिकल्स में जितने एड्स ऐड होंगे ऑन दैट बेसिस और व्यूअर्स के लाइक्स के बेसिस पे आप पैसे कमा सकते हो. या फिर यूट्यूबर, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है. इसके अलावा आई वाज टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट. तो ऑफ कोर्स लाइक इफ यू टॉक अबाउट शेयर मार्केट देयर आर टू मार्केट्स. एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है कमोडिटी. ठीक है. इक्विटी में शेयर्स आप खरीद कर सकते हो, बेच सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, एक ही दिन में खरीदो, एक ही दिन में बेच दो. ठीक है. ये होता है इक्विटी में. कमोडिटी में क्या होता है? लाइक शेयर्स अगर आपको खरीदने हैं तो वो लॉट्स में खरीदे जाते हैं. और इसमें क्या आता है जनरली कमोडिटी में? पेट्रोलियम, गहू आपले असतात, राइस, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर कमोडिटी. एंड इन दैट केस आपको ऐसे शेयर एक या दो नहीं खरीद सकते आप. कमोडिटी में क्या होता है? लॉट्स होते हैं, मतलब 100, 1000 ऐसे आपको खरीदने. नाउ हाउ यू कैन मेक करियर इन शेयर मार्केट? इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? तो अवेयरनेस. क्या चल क्या रहा है आपको? हमारी अवेयरनेस इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यूथ में. इंजीनियर के बच्चों, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के अलावा कुछ पता ही नहीं होता. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, पेरेंट्स लोगों में भी बहुत अवेयरनेस के प्रॉब्लम्स है. बहुत सारे लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा कुछ पता ही नहीं. ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एज वेल. सो ये सारे चैलेंजेस है. तो शेयर मार्केट में क्या है? अवेयरनेस मतलब लाइक इकोनॉमी क्या चल रही है, उसके इम्पैक्ट्स क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, ये सब पता होना चाहिए. Now share market में there are two courses. That is, first is CFP, that is Certified Financial Planner, and second thing is Certified Financial Advisor, CFA. अब ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स, बहुत लोगों के पेरेंट्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते होंगे. तो जो लोग गाइड करते हैं कि सर आप इसमें इन्वेस्ट करो, सर आप ये करो, आपको इतना पैसे पीछे डालना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा. सो ये जो एडवाइस दिए जाते हैं, these are the persons who had cracked CFP exam, Certified Financial Planner की एक एग्जाम होती है. वो अगर आप करते हो तो you can start your own business in share market. इसके अलावा CFA, that is Certified Financial Advisors. Now these are the persons who are hired by Indian government या फिर बैंकिंग में हायर किए जाते हैं, कि जो दिन के लाइक इन करोड्स, इन बिलियंस, मिलियंस में उनका ऐसा अकाउंटेबिलिटी होती है. रोज ये देखते हैं इतने सारे पैसे, उसके ऊपर वो ट्रैक रखते हैं. दीज आर द पर्सन्स हु आर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स. एंड ये एक ऐसी एग्जाम्स होती है, ये दो, CFP एंड CFA. दीज आर टू एग्जाम्पल्स. ये ऐसी एग्जाम होती है कि जो 1000 बंदों में से एक बंदा एटलीस्ट क्रैक करता है. सो डिफिकल्टी लेवल यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. So these are two things. Later, इसके अलावा next point which I want to cover is that is like NGO. You can form your own NGOs. ठीक है. जैसे I had worked with Greenpeace India. Apart from this, I had worked with IGO, that is UNICEF, Intergovernmental Organization. अब ये NGO, IGO क्या होता है? तो NGO like कोई भी cause के लिए आप start कर सकते हो. नाम फाउंडेशन है, बंकर रॉय का एक फाउंडेशन है. ठीक है. There are different foundations. On that basis, आपकी अगर कुछ आइडिया है तो you can start for social cause. IGO, it's an intergovernmental organization. For example, UNICEF. UNICEF is a member of United Nations.
and there are several governments who are members of United Nations. So इसको हम क्या बोलेंगे, NGO नहीं तो but IGO, intergovernmental organizations. You can work with this as well. You can start your NGO as well. ठीक है. उसके बाद next option which I want to talk about is civil services. Now what is this civil services? Civil services मतलब government jobs, UPSC, MPSC. ठीक है. अभी I will make one statement. अभी MPSC की सबसे ऊपर की जो पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट इज डेप्यूटी CM. ठीक है. एंड यूपीएससी की सबसे नीचे की जो पोस्ट है वो IAS होती है. तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आप क्या करो, तो लाइक यू शुड गो फॉर यूपीएससी अगर आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हो तो. मतलब क्या, तो विल टेक रियल टाइम एग्जांपल्स. यूपीएससी थ्रू यू कैन रीच टिल प्रेसिडेंट पोजीशन, टिल CM. उसके बाद लाइक कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट पोजीशन तक आप जा सकते हो. यू कैन टेक रियल टाइम एग्जांपल्स. अजित डोभाल नेशनल प्लेजर सिक्योरिटी है. उसके बाद लाइक अरविंद केजरीवाल, ही वाज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट. इसके अलावा किरण बेदी. ठीक है. दीज आर द पर्संस हु केम फ्रॉम यूपीएससी और एमपीएससी एंड दीज आर गवर्नमेंट सर्विसेज जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है आपका. एंड ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं कि लाइक आप इंजीनियर होने चाहिए. नो, इवन अ BA, MA, BBA, MCA, BCA, BCom, आर्ट, साइंस, एनी स्ट्रीम, कोई भी यू कैन चूज फॉर यूपीएससी और एमपीएससी. एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज लॉ. आप लॉ कर सकते हो. सो लॉ में करियर एज वेल एज कॉर्पोरेट लॉ होते हैं. सो इन दैट केस ऑल्सो आप जा सकते हो. एंड लाइक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, those students who are really interested in Indian constitutions and all these things, like you can choose this as an option. उससे क्या होता है, like you will understand कि what are the pitfalls of the system कैसे work out होती है, कैसे किया जाता है इसे. So all these things comes under law. So like these were the different parameters. इसके अलावा I would like to suggest all of you guys कि ये जो भी वीडियो है, like Madhav sir is going to share with me. I will post it on my YouTube channel as well. Sir will share the link as well. So, जो भी ऐसे कुछ issues है, any problems if you are facing, any career related issues, so I will share my number. You can ping me on WhatsApp. You can be in touch with me. So my number is 8805 232373. I will repeat it again. 8805 232373. So anytime if you want to talk personally, you can get in touch with me. And this was the session all about. Iske alawa, like I will repeat all the 15 parameters what we had seen. That is, initially we had saw the campus placements. Later we had seen the higher studies. Fine. इसमें हमने देखा कि like GATE हो, MS, JAM exam हो, या फिर PhD. इसके अलावा there are several colleges की जो specific, अगर फॉर एग्जांपल VIT, SRM, BITS ऐसी कुछ कॉलेजेस है, कुछ लोगों को MS इसी कॉलेजेस में से करना है, तो उनके वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता है. इसके अलावा थर्ड ऑप्शन वी हैड सीन टीचिंग प्रोफेशन, ओन कोचिंग क्लासेस. उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, आपको गवर्नमेंट कंपनी में जाना है तो गेट इज द ऑप्शन. एक्सपर्ट्स, लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में. ठीक है. MBA, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद बिजनेस, entrepreneurships and startups that we had seen. And uske baad later we had talked about armed forces, merchant navy, share market, NGOs, civil services, government exams, government positions. ठीक है. Law. ठीक है. This was the like 15 parameters which I had covered. And apart from this I would like to talk की काही जरी राहिला असेल तर you can give me a call. काही समजलं नसेल personally, you can ask. So today like this was the last point. I hand over this like I asked Madhav sir to end the session, please. And if there are any questions, like you can take the questions as well. We can take the questions. Sure. Thank you, Abhishek. It was really a very enlightening session. Rather, you have covered almost every aspect. Rather, the first aspect, which is very important about the
aptitude and communication, because I have seen major students failing in their life miserably because of the Yes. awareness what they don't have. It does not mean that they are not knowing what to do, but they don't do, though they know it. Yes. Yes. So but it was really wonderful session. It's something different than expected. We were expecting like you will be focusing on a corporate and other things, but you have covered everything almost which one graduate should know. But the Thanks. crux of the session, I would like to tell students on this platform is, if you're good in communication, if you're good in aptitude, definitely nobody will dare to reject you in any of the field Yes. you go, because you take government, semi-government, PSUs, you talk about corporate world, everywhere these two things are very important than your subject knowledge also. So added to your subject knowledge, these two things you need to keep it very strong. And definitely either you are trying for MBA or masters in abroad, or if you are planning for MTech or in IITs or NITs or maybe NITI also. So these are two things which Abhishek has begun the session. You should keep it in mind. So let's take two questions and then we will close it. Yeah. There Sir, is like, one. can you start Yeah, your video? I can't see you actually. I have some network issues, so that is the reason I am not starting, or it will get disconnected. Okay, sir. In Fine. Fine. Yes. Fine. Fine. So there are some questions. There are two, three questions which talks about GRE. Like, would you please just guide on GRE, like which academic they should start, they should join, which book should be there, like in terms of preparation of GRE. Acha. See, guys, like on the question which has been asked, Mhm. I will not suggest you any academy or this. Rather, I will give you a solution. क्या करना चाहिए आपको? See, like जो भी academy या जो भी institute है, आपको लगता है कि I should prefer that institute. Go and take your feedback from the students who are sitting there about the faculty, how they teach. Apart from this, उसके results क्या है? So after taking this feedback, then I will then take your own decision. कि I want to go in this academy, I want to go in that academy. ठीक है? Apart from this, जैसे now if you talk about syllabus, like there are several books and basics. तो सबसे basics है RS अग्रवाल, कि जिसमें aptitude बहुत सारा cover होता है. And इसमें detail में जो है वो आपको GRE की जो वेबसाइट है, GRE की जो इंफॉर्मेशन है उसमें आपको मिल जाएगी. बट इन शॉर्ट मैं इसमें यही आपको करूंगा, आई विल सजेस्ट यू कि डोंट रिलाई. अगर किसी ने बोल दिया कि लाइक यू गो फॉर दैट एकेडमी, डोंट गो डू दैट. टेक फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द फीडबैक कि व्हाई आई शुड गो, लाइक रियली वो सब कंसेप्ट कवर करते हैं या नहीं. दैट मैटर्स अ लॉट. एंड आफ्टर दैट लाइक यू कैन go for that institute. Yes. Hello. Well, yeah. The second question, Abhishek, is like if some students are like aspiring to go for higher education after immediately completing their engineering, due to अच्छा. weak economical issues or financial issues, they are unable to go for it. So, would you अच्छा. suggest any other option, like where they can get some financial assistance or something where it would be helpful for them? अच्छा. Financial. अच्छा. See, like in this situation, what I will do, suggest you is, see, like if you are taking any decision, if you have decided कि मुझे like I'm going to, मैं करूँगा in any situation, I'm not going to get distract. तो सी इट इज नॉट द लाइक ऐसे मैं बोल नहीं सकता कि लाइक आप ये करो, बट आई कैन टेल यू कि आप दीज आर द ऑप्शंस. ठीक है? तो इन दैट सिचुएशन क्या कीजिए ना, लाइक गिव कॉन्फिडेंस टू योर पेरेंट्स कि लाइक आई हैव द गट्स एंड आई एम गोइंग टू गेट थ्रू. तो फाइनेंशियल लाइक क्या होता है ना, बहुत सारे रादर देन अभी सी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स है तो यू कैन, जैसे मैंने बोला TISS एक एग्जाम है, या फिर देर आर सेवरल एग्जाम्स की जो स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं. ठीक है? स्कॉलरशिप एग्जाम्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने टिस्का बोला, तो देर आर डिफरेंट कंट्रीज
who conduct these scholarship exams, and on that basis you get the scholarships, and पूरा जो खर्चा है वो मतलब that university या फिर that country आपका करती है. And like थोड़ा सा अलग aspect अगर आप लेते हो तो convince your parents या फिर financial के बारे में, like sir I can't tell anything कि क्या करना चाहिए. I'm really sorry for that. And a person who had asked this question, you can give me a call. I had shared my number, and by knowing the details and talking with a resource person, a right person, I will definitely get back to you on this. Rather, Abhishek, I will throw a light on this. There are Yes. certain organizations in Pune or in Mumbai. One of the organizations is Go Abroad for Higher Education. So if you approach them, they help you to select the university. They also help you to get a scholarship from the abroad government. And also, if not possible, they will also help you to get a educational loan from some of the good reputed banks. So there are many organizations where we would definitely approach, or we can keep such sessions if at all you are interested for higher education. That's it. So let's close. It's almost 1 hour and 45 minute session. Abhishek, it was really wonderful and thought-provoking session, and we are looking Yeah. forward for a long and healthy relationship with you. Once this Yes, sir, situation gets definitely. normalized, we will definitely invite you to the college to interact Yes, with the sir, students. definitely. And Definitely, it was definitely, sir. really a very wonderful session, I would say. Rather, whoever has attended it might have got a lot of insights. Yeah. And I appeal the students, please start working on these sessions. And if Yeah. at all And you sir, have missed last. something, we will share you the YouTube link. You can keep listening to our video. Yes, yes. And sir, last thing Yes, I want Abhishek. to add, like please share me like feedback, your genuine feedback, because that is going to help me to Yes, stand yes, strong yes. in the market as well as learn many things. And last thing, so Sure, like I sure. want to So I appeal all the request. students to please, yeah, yeah. Avinash, will you take a selfie, digital selfie? I request all of you to please switch on your videos. Sir, like I request you as well to start your video as well Yes, 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 definitely, for definitely. 1 minute because it's like a memory for me in the future. Yeah, yeah, definitely. Yes, really thanks, sir. Avinash, done? Sir, 1 minute, Hello? 1 minute. 1 minute, sir. Yeah, yeah. Done. Sir, done, done. Yeah. Acha. I request all And the students to please put your feedback on a WhatsApp either to me or Avinash. So it will be helpful for me to pass it to sir. yes, yes, sir, definitely. Yeah, yeah. And once again, thanks for your opportunity that you had given me Thank to you, talk sir. in Thank front you of the very much, students. Abhishek. It was really wonderful session. Thanks a lot. Yes, yes. Thank you, Sure. sir. Yeah.